Hello students, good morning to all of you. Dear students, today I am going to teach you short stories of all the sections of class 12. Lesson number 1, the gold watch. Dear students, I taught you half part of the story yesterday. Now today you will see the second half part of the story, the gold watch. As I have taught you earlier about the story, that here a poor factory worker Sanku was working in a factory. He was very poor. He could not afford his family problems. He had no money. He earned little, but he had a lot of expenditures. However, he tried to manage the expenditure, but he was helpless. So here, as I taught you earlier, he earned money, but when he calculated all his expenditure, he was indebted. He had a lot of debt on his head. He had taken loans from his factory as well as from several people. He had taken debt, borrowed money from several people. So in this way, he was completely disturbed that time, and he could not sleep for many days. When he tried to sleep in the night, he was disturbed to see all those expenditure. So see, however, what happened thereafter when he added all his amount and then he wanted to steal the gold watch. But see what had happened thereafter. From here you will see the next chapter, paragraph. When he was going to get was just 8.5 rupees. So हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किस तरह से संकू अपने उन तमाम खर्च जो अधिक से अधिक खर्च थे, कई तरह से लोन लिया हुआ था, उन सब से वह कितना परेशान था, और अंत में जब उसने कैलकुलेट किया और फिर अपने इनकम को कैलकुलेट किया तो वो बहुत परेशान था। अब आगे देखिए, what he was going to get was just 8.5 rupees. अब उसे कुल मिला करके 8.5 रुपए मिलना था। जितना आपने देखा था पिछली बार हमने बताया कि 13 रुपीज़ फॉर 13 डेज उसको मिलना था, 13 दिन के लिए 13 रुपए, लेकिन उसमें से कुछ फंड कटता, कुछ जो लोन लिया था वो, ये सब जोड़ जाड़ करके एट द एंड में वह बता रहा है उसे केवल 8.5 रुपए ही प्राप्त होता। What he owed was 22 rupees 13 पैसे। उसके ऊपर 22 रुपीज और 13 पैसे का कर्ज था। He had other needs too. उसके पास कुछ और भी खर्चे थे। He had other needs too. आवश्यकताएं थी। He had borrowed 3 rupees from his wife. उसने अपनी पत्नी से भी 3 रुपए उधार ले रखा था। This was out of the sums he had slowly saved up now and then in order to buy a waist chain for the younger child. किसी तरह से उसने इधर उधर करके बचा रखा था ताकि वह अपने बच्चे के लिए वेस्ट चेन, मतलब कमर में चेन पहनने के लिए खरीद सके। He had assured her that he would buy it out of his pay that month. और वह इस बात की निश्चिंत था कि इस महीने की तनख्वाह से वह उसको खरीद ही लेगा। उसने अपनी पत्नी के साथ आश्वासन दिया। Sanku's heart beat uncontrollably fast. सनकू की हृदय की गति धड़कनें तेजी से बढ़ने लगी।
Through his heartbeats he could hear the half voice of the tea shop owner Kochuki. आपने उसी हार्ट बीट के ही मध्य, धड़कनों के मध्य ही उसने जो चाय की दुकानदार था, चाय बेचने वाला जो विक्रेता था कोचुनी, उसके उस कठोर कड़वे वचन सुनता था। अलीज हालो लॉफ्टर, अली की उस भद्दी आवाज को, वल्गर वर्ड्स एंड द इरिटेटिंग टॉक ऑफ लुलमपन हु वाज इन चार्ज ऑफ द फंड, जो इंचार्ज था फंड का, लुलमपन, उसके भी उस कड़वे आवाज बात को वह ऐसा महसूस कर सकता था, सुनाई देता। He felt that there were all surrounding him like rowdy boys armed with a stick gathering around a stray dog. उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके चारों तरफ एक, जैसे वह आवारा कुत्ता हो और उसके चारों तरफ बच्चे हाथ में डंडा लेकर के उसको दौड़ाए हुए हों। What a horrible scene! कितना भयावह दृश्य था। What a horrible scene! Finding it unbearable, Sanku turned over on his stomach and thought, अब यह असहनीय था इस तरह से रात में जो वह देख रहा था, स्वप्न देख रहा, ऐसे जागते हुए देख रहा था, अब वह उसके लिए असहनीय हो गया था और वह फिर पेट के बल पलट करके सोचने लगा, आई हैव नो अल्टरनेटिव बट टू पिक इट अप टुमारो। अब मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि कल मैं इसे उठा लूँ। विल इट नॉट फेच एट लीस्ट 20 रुपीज़? क्या यह 20 रुपये भी नहीं देगा? अगर मैंने घड़ी को बेच दिया तो क्या 20 रुपये भी नहीं प्राप्त होगा? इवन 15 विल डू, अगर 15 भी मिल जाए, 15 प्लस 8.5, अगर बेचने के बाद 15 रुपये ही मिल गया तो 15 प्लस 8.5 रुपये को जब संकु ने कैलकुलेट किया तो 20 रुपीज़, 20 रुपीज़। क्या सोच रहा है कि 15 प्लस हाफ 8.5 दैट इज 23.5 रुपीज़, 23.5 रुपये होता है। इट विल फिच मोर देन 15, तो 15 रुपये थे तो अधिक ही हो गया। He would be able to pay his debts, इस तरह से वो अपने कर्ज को निपटा लेगा and live in peace, और बिल्कुल चैन से शांति से रहेगा। A life free from debts, ऐसा जीवन जो कर्ज से मुक्त हो। With a feeling of relief he drifted into a life free, ऐसा महसूस करते हुए उसे अच्छी नींद। It was morning, सुबह का वक्त था। What are you still asleep? क्या तुम अभी तक सोए हुए हो? Sanku's wife said gently, shaking his shoulders. संकु की पत्नी ने कंधे से झिझोड़ते हुए संकु से पूछा, It is long after sunrise. सूर्योदय हुए कितना समय हो चुका है? संकु raised his head at once. संकु ने अपने सिर को ऊपर जब उठाया और देखा, his wife picked up the younger child who was crawling up to her. उसने देखा उसकी छोटी सी बच्ची अब उसकी गोद में अपनी माँ की गोद में पड़ी हुई है। and asked संकु से उसने पूछा, Don't you have to go to work today? आज तुम्हें कार्य पर नहीं जाना है क्या? Oh yes, he said and got out of bed. हाँ कहते हुए संकु बिस्तर से बाहर आया। He stepped down into the courtyard in a hurry. जल्दी से वह आंगन में गया। Watching the golden rays of the morning sunlight in the lush bamboo fire on the stone side and riding the old palm leaf fan. बाहर उसने आंगन की तरफ जब देखा तो सूर्य की किरणें उस बांस के पत्तों से छलते हुए अंदर उसके उस छप्पर पर उसकी किरणें पड़ रही थी। He washed his face and hands as usual. पहले तरह उसने अपने हाथ मुंह को धुला, put on his working clothes, अपने कपड़े को पहना जो पहन करके वहाँ फैक्ट्री जाता था, and was about to leave for his factory when his wife said, और जैसे ही फैक्ट्री से निकलने ही वाला था कि उसकी पत्नी ने कहा, Listen, you must buy some ointment for the child. बच्चे के लिए कुछ मलहम भी लेते हैं। She threw a commanding look at him. फिर आदेशात्मक निगाहों से उसकी तरफ देखते उसने कहा, Sanku felt that each of the sore on the child's fasting body was staring at him a gruesome way. संकु ने महसूस किया कि उसकी जो बच्ची है उसके शरीर के जो फुंसियाँ हैं, फोड़े हैं, हर जगह से बड़ी भयावह दिख रहे हैं। A moment paused in silence. एक क्षण तो चुप्पी भी बीत गई। What sort of ointment? संकु asked like a fool. मूर्खों की तरह संकु ने पूछा, कैसा मलहम चाहिए? Ointment for this food. Continued the wife. उसकी पत्नी ने कहा कि वो जो फुंसी फोड़ियाँ हैं, फोड़े हैं उसके लिए ऑइंटमेंट चाहिए। You mean you have not seen the sores all over the child's body? ऐसा कह रहे हो जैसे तुमने बच्ची के पूरे शरीर पर उन फोड़े फुंसियों को नहीं देखा है। Yes. How many पैसे worth of ointment? हाँ, कितने पैसे वाला मलहम चाहिए? At least 13 पैसे वर्थ, कम से कम 13 पैसे का हो।
वी मस्ट अप्लाई फॉर 3 days एटलीस्ट, कम से कम 3 दिनों तक इसे हमें अप्लाई करना। सनकू बिगन टू वॉक विद बेंट हेड, तो सिर हिलाते हुए सनकू ने कहा प्लीज, सी कॉल्ड आउट इन सॉफ्ट वॉइस। सनकू लुक बैक, तो धीरे से बड़े ही नर्व्स से उसकी पत्नी ने कहा कि प्लीज। तो ऐसा कह जब उसने कहा, सनकू ने पीछे पलट कर देखा। सी स्पोक जेंटली, बड़े धीमे से ही उसने कहा प्लीज ब्रिंग 2 ripe bananas when you come back in the evening। शाम को लौटते वक्त 2 पके हुए केले ले आना। द बेबी स्टार्ट्स क्राइंग एट नाइट, रात में बच्ची रोने लगती है। एंड आई हैड नो मिल्क टू गिव हिम, मेरे पास उसे पिलाने के लिए दूध भी नहीं है। सी स्टूड देयर पुलिंग अप हर ब्लाउज विद हर लेफ्ट हैंड, बाएं हाथ से उसने अपने ब्लाउज को हल्का सा ऊपर किया। तो देन सनकू नोटिस हर बेली बलून आउट, तो उसने सनकू ने देखा कि उसका पेट बाहर निकला हुआ है। वॉज इट अनदर बर्डन ऑन द वे, क्या एक दूसरा बोझ भी सिर पे आने वाला है? सनकू वॉज स्टन्ड, सनकू बहुत चक्का रह गया। ही कर्स्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को कोसा। एंड विद अ डीप साई ही रिज्यूम्ड हिज वॉक इनटू द फैक्ट्री, और एक लंबी सांस लेते हुए फैक्ट्री की तरफ निकल पड़ा। लिसन, डू नॉट फॉरगेट, द वाइफ रिमाइंडेड। सनकू की पत्नी ने एक बार फिर से याद दिलाते हुए कहा सुनिए, भूलना मत। सनकू नॉटेड हिज हेड एंड वॉक आउट, सनकू ने सिर हिलाया और वहां से निकल गया। एट 1 o'clock द बेल रैंग फॉर द इंटरवल, 1 बजे घंटी इंटरवल के लिए बजी। एवरीवन रोज इन हेस्ट टू होम्स, होटल्स और टी शॉप फॉर लंच, प्रत्येक लोग, सभी लोग या तो घरों के लिए, होटल के लिए या चाय की दुकान पर लंच इत्यादि के लिए निकल रहे थे, जल्दबाजी में थे। सनकू was the only one who did not go anywhere। सनकू ही ऐसा था जिसे कहीं नहीं जाना था। He stood leaning against pillar in a corner, कॉर्नर पर वहीं अकेले कोने में खड़ा रहा। On the west side of the office, ऑफिस के बाईं तरफ। His heart was clouded and bursting with joy। उसका हृदय बिल्कुल तेजी से धड़क रहा था, अधीरतापूर्वक धड़क रहा था। So dear children, say, so I will teach you the other part the next day। Thank you।